we are discussing the field inside the very long straight wire of the cross section of the radius A, that is equivalent to thick cylinder. Field inside will be given by this relation. We have done it yesterday, where r is the distance of point from the axis of the cylinder, a is the radius of the cylinder. So directly proportional to r, directly proportional to distance, as long as point remains inside. यहाँ से यहाँ तक देखो, if you move from the axis this side or this side, you find that field increasing, surface पर maximum हो जाएगा, और then it starts decreasing. That already we have seen this formula. R नीचे आ जाएगा, R remaining the distance from the axis of the cylinder throughout. ठीक है, तो इसका ग्राफ भी देखो ऐसा आया था. All right, so this was the question given to you. What's the answer of this question? क्या दिया है? Okay, there are 2 points. I told you इस ग्राफ में भी पता लग रहा, there are 2 points where the field will be same. यहाँ पर फील्ड सेम रहेगी, एक पॉइंट अंदर रहेगा, एक पॉइंट बाहर रहेगा, तो दोनों इक्वेट कर सकते हैं यहाँ से. क्वेश्चन इज दिस, अंदर जिस पॉइंट पे बाहर कौन सी डिस्टेंस पर सेम फील्ड होगी, तो बी इनसाइड इज इक्वल टू बी आउटसाइड. सम ऑफ यू डन इट राइट. इनसाइड का फार्मूला लगा दीजिए, म्यू नॉट आई r1, इनसाइड को r1 ले लो, एंड नीचे क्या था उसमें, इनसाइड में 2 पाई a स्क्वायर. r डैश दिया ना, r डैश दिया तो r डैश ले लो, सिंबल जो दिया है, टेक दैट, थैंक यू, है ना. तो फील्ड इज बी, आउटसाइड भी सेम, कितने डिस्टेंस पर होगी. तो नीचे क्या था इनसाइड में, 2 पाई a स्क्वायर विच इज द रेडियस. आउटसाइड की फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r कर लो, इसको r निकालना है. तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, दोनों तरफ है, i भी गया. r डैश कितना है, a बाई 3 दिया हुआ है, दिस इज a स्क्वायर 1 बाई r निकालना है हमें. इफ यू सिंप्लीफाई, r विल बी 3a. इसका जो 3 था डिनोमिनेटर का, इसमें न्यूमरेटर में चला गया. अगर 4 होता तो यहाँ 4 आ जाता है. Just to have rough idea quickly that the digits will interchange. So this is important question, can be expected in boards and competition both. Only thing you have to remember, formulas correctly, inside different, outside different. Okay, no problem. Now my next question is this. Next question is field due to the long cylindrical tube, that's hollow cylinder. बाहर कितनी होगी, point is outside, what will be the field? Same again as that of thin wire, infinitely long wire, mu naught I by 2 pi r. Or inside, suppose point is here, inside the tube or inside the hollow cylinder, what will be the field? 0. Why 0? Why 0? एम्पियर लूप बना लो यहाँ पर. Current passing through the ampere loop will be 0 because all the current will remain under the circumference. Hollow tube है, current अंदर तो आएगा नहीं इसमें. Current enclosed will be 0 in this case. If you use the formula B dot dl is equal to mu naught times of I enclosed. So I enclosed will be 0. Therefore, B will be 0 inside the tube because all the current remains where? Circumference. All current remains, since all current will be on surface of the cylinder, on surface. ठीक है, तो अंदर करंट आएगा नहीं, तो अंदर करंट होगा नहीं,
एम्पियर लूप से करंट क्रॉस नहीं होगा, देयरफॉर field will be zero inside everywhere, similar to the uniformly charged shell. उसमें गॉसियन सरफेस बनाई थी हम लोगों ने, गॉसियन सरफेस के अंदर कुछ चार्ज होना चाहिए, but charge remaining there on the surface of the shell, field was zero. Here also field is zero inside the cylinder, hollow cylinder. ग्राफ ऐसे आएगा देखो, from center to surface B is zero, inside point हो गया, circumference on the surface it is maximum this much, mu naught I by 2 pi a, then starts decreasing and will be zero at infinity. यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा. So this is also important, short question. Getting these points very clearly, very important points, you know. Now, okay, let's see further. Any difficulties so far? बोलिए. संस्कृति, you are not there. समझ में आ गया? एमपीएस सर्किट लॉस से किया हमने ये yesterday, this was done only, and numerical sub previous class were done. Anything else is remaining? कुछ pending है क्या? This was done. ये क्वेश्चन का आंसर ये आया था, इसमें कोई डाउट नहीं है. कल डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने, यूनिटरी मेथड से करंट निकाल के और उसको लिमिट लगा के इंटीग्रेट किया था. 1/x का इंटीग्रेशन log x ln x आता है. ओके, these all are done. चलो, now we are moving on to the next topic, most important. देखो ये नया टॉपिक देखते क्या है. सोलेनॉइड. You know solenoid, have you heard? Solenoid क्या होता है बोलो. ये it is the, yeah. Sir, it is a coil which is made into N turns, and when electricity passes through it, it produces magnetic field. Yes, but condition is this: closely wound coil. Gap should not be there. You can see it here. Diagram में हम लोग बनाएंगे थोड़ा gap, but in fact it is tightly wound helical coil and insulated. All the wires will be insulated. Current will completely circulate. Short circuit नहीं होगा. Insulated wire रहेगा ये. And thin insulation is there. We don't come to know even. Not like insulation in our wiring at home. Plastic दिखती ना वो insulation, वैसी नहीं रहेगी. It will be very thin insulated paint will be there. So they are used to produce a local magnetic field inside the TV and synchrotron. That is a very huge machine to accelerate the electrons. Cyclotron से electron को हम नहीं accelerate कर पाते because it goes out of step. But other machine which is not in our course is used to accelerate the electrons. ठीक है, तो this is the purpose. So again magnetic field we have to inside. Now इसके अंदर कितनी magnetic field होगी? Inside. That's what we have to derive the relation very frequently. Ask question. तो यहाँ पे आ जाते हैं derivation पर सीधे. देखो, magnetic field inside the long state solenoid. Long means length is very large as compared to its radius. That's again long solenoid is in our course. Short नहीं है, long है जिसमें length is much larger. Solenoid, long solenoid is one in which length is much large as compared to its radius. तो उसका डेरिवेशन हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ से कर सकते हैं. शॉर्ट का नहीं कर सकते, उसमें कम फील्ड के कंपोनेंट आ जाते हैं. दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ आवर कोर्स. ऑलराइट, नाउ लेट अस कंसीडर, ये हमने एक सोलेनॉइड ले लिया, लॉन्ग सोलेनॉइड. रेडियस विल बी मच स्मॉलर, बट इन दिस वी आर मेकिंग बिगर रेडियस टू फॉर द सिंप्लिसिटी और क्लियरिटी ऑफ द डायग्राम. इसमें करंट जो है, आई द करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड. करंट इंटर होगा आई एंड बाहर आएगा आई. तो करंट इन ईच टर्न में करंट आई सर्कुलेट करेगा. इन ईच टर्न
current will be I. Whatever the current enters into the solenoid, it is circulating in each turn. ठीक है, तो each turn में same रहने वाला है current. We'll be more interested in each turn. ठीक है. Now n is the total number of turns. ये total number of turns है. Total turns in solenoid, L its length. इसकी length हमने small l ली है. तो turns per unit length will be total turns divided by length. The small n is turns per unit length. Unit of small n will be per meter. इसका number का तो होगा नहीं unit. Length will have meter will, इसलिए denominator में है. तो unit will be per meter. All right, यहाँ तक. Outside, यहाँ पे देखो, this point you understand. Outside along the length I am telling. This side नहीं, यहाँ नहीं. Along the length here. Field will be negligible. Why? Why negligible? चलो देखते कहाँ गया ये. हाँ, यहाँ पे देखो. Outside here. इसकी फील्ड जो है, ये वाला इतना सेगमेंट, इनकी फील्ड के सर्कल ऐसे जा रहे हैं. और नीचे वाला देखो, सॉरी ऐसे आ रहे हैं राइट हैंड रूल से. रिंग्स की आई मीन मैग्नेटिक फील्ड के रिंग्स ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगी किसी कंडक्टर के अलावा, तो ऐसे. और ये अपोजिट है, देखो अपोजिट जो सेगमेंट होगा उसकी फील्ड ऐसे जा रही, उसके फील्ड के रिंग्स ऐसे आएंगे. तो ये ऐसे और ये ऐसे अपोजिट होगा. देखो एज आई टोल्ड यू, रेडियस विल बी वेरी स्मॉल. यहाँ पे बहुत बड़ा दिखा रहे, रेडियस विल बी वेरी शॉर्ट. लॉन्ग सोलेनोइड की बात हो रही है. रेडियस इज स्मॉल एज कंपेयर टू इट्स लेंथ. तो दोनों अपोजिट आएंगे. ये सेगमेंट की जो फील्ड इधर आएगी, इसकी करस्पॉन्डिंग सेगमेंट की फील्ड ऐसे आएगी. और अंदर दोनों ऐड हो रही. देखो अंदर देखो, इसकी भी और इसकी भी दोनों ऐड हो रही. इनसाइड बोथ आर गेटिंग एडेड अप, है ना, सभी पार्ट ऑफ द सेगमेंट की. बट आउटसाइड अपोजिट आएंगे यहाँ पर, दिस साइड आल्सो, दिस साइड आल्सो. तो फील्ड इज नेग्लिजिबल. आउटसाइड डजंट मीन दिस साइड. एंड्स की तरफ है फील्ड. somebody were telling sir outside, तो आपने बोला जीरो होगी, नेग्लिजिबल होगी. एंड पे तो फील्ड लाइन सफिशिएंट दिख रही. आउटसाइड मींस अलोंग द लेंथ आई एम टॉकिंग. Even this line should not be, and इतनी दूर पे नहीं शो करनी चाहिए, वेरी क्लोज शो करनी चाहिए लाइन. बिकॉज when we are very close to the wire, field is sufficiently strong. थोड़ा सा दूर जाएंगे, इसकी फील्ड कैंसलिंग इफेक्ट विल बी सिग्निफिकेंट. ठीक है, तो कैन यू सी दिस अपोजिट. इसका बड़ा रिंग करो ऐसा, तो अपोजिट आएगा इसका. तो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर. देखो outside along the length, यहाँ पे just let me highlight. Why negligible? Because almost cancelled by the opposite segment of the solenoid. That's reason be given there. Now let us now derive the relation for field inside. हमने इनसाइड लिखा है, इनसाइड द कोर. कोर के अंदर निकालना है. ठीक है, तो एम्पियर सर्किट लॉ यूज करेंगे. उसके लिए हमने एम्पीरियन लूप ले लिया, ये वाला एम्पीरियन लूप लिया. कैन यू सी दिस एम्पीरियन लूप? ठीक है, उसमें से कितने टर्न्स करंट उसमें से लेके आ रहा है वो निकाल लेंगे. नाउ यू सी, consider एम्पीरियन लूप ABCD. लोअर स्मॉल लेटर्स पे हमने इंडिकेट किया ABCD. ठीक है, नाउ current enclosed by this loop. Can somebody tell me how much current will be enclosed inside this? That's what is the main point here. Remaining rest of the things are very easy. Bolo, can you predict? बताइए, how much enclosed निकालना है हमें. क्या निकालना है? करंट enclosed. करंट enclosed by this loop. रेड कलर का जो दिखाया है ना, इतना करंट होगा. I enclosed will be current in each turn, that is known. कितना each turn में? ये I
मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ लूप्स पासिंग थ्रू द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बोल सकते हैं। लूप हमने इसको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनसाइड द लूप, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप। हाँ ठीक तो लिखा था, टोटल टर्न्स इन द एम्पीरियन लूप। चलो ठीक है, एम्पीरियन लूप कर देते, लूप। बोलो, who will tell me this current in close चाहिए ना, एम्पीयर सर्किट वाला। current in each turn is how much? I into how many turns are there? इसके अंदर कितने टर्न्स निकल के आ रहे हैं ऐसे, बोलो। how I. many how many how many many of you have switched off the camera। सो गए फिर अभी बंद करके। प्रियांशु, how much will be the number of turns in the ampere loop? Quickly, no response। देखो, इसलिए कैमरा ऑन करने के लिए बोलते हैं। साक्षी में are you there? Sir, may I? हाँ चलो बताओ। Sir, N into L. कैसे into, अच्छा इसकी लेंथ कितनी ली? सॉरी, यहाँ पे देखो L, L, capital L, capital L. ओके करेक्ट, कैपिटल L वी आर टेकन। यहाँ से देखो AB विल बी कैपिटल, यहाँ ऊपर दिखाया हमने। दैट्स व्हाट इज नीडेड। ये नहीं चाहिए, देखो BC क्यों नहीं चाहिए अभी हमें पता लग जाएगा। ओनली along the solenoid length is needed। तो देखो, how can you explain? You are told small, कौन सा n? छोटा n की बड़ा n? Small n. Which one? Small n. Okay, small n indicates current per meter of length, है ना, यूनिट लेंथ है ना। तो ये कितने मीटर है? कैपिटल L मीटर है, ऊपर लिखा देखो यहाँ पर। तो 1 मीटर के लिए स्मॉल n, तो L मीटर्स के लिए इनटू कैपिटल L। जो भी लेंथ लेंगे AB की, वट एवर लेंथ यू टेक, X R Y or Z or L, दैट मच। इसमें से देखो ऐसे लूप्स बाहर, लूप्स ऐसे, करंट उसमें से डाउन या अप, डिपेंडिंग अपॉन जो करंट की पोलैरिटी क्या है, सॉलिनॉइड को कैसे हमने कनेक्ट किया है। तो दैट मेनी करंट्स will be coming out of the loop or going inside the loop, that's what we need। तो I in each turn, total turns कितने हैं? N is the turns in 1 meter length multiplied by the length of the amperial loop। तो ये बस, इसके बाद एम्पियर लॉ लगा देंगे। तो लेट्स सी, हाँ यहाँ पे देखो एम्पियर लॉ में भी थोड़ा ब्रेक करके लिखना है। देखो यहाँ पर भी एक वन पॉइंट इज देयर। देखो इसको ऐसे पहले मैं रब कर देता हूँ, जस्ट लेट मी रब इट ऑफ। हाँ, now you see, देखो, using the ampere circuital law for loop ABCD, तो क्लोज लूप है, यहाँ पे साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इंटू म्यू नॉट इंटू I इनक्लोज। I इनक्लोज तो ये पुट कर देंगे, बट इसको ब्रेक करके लिखना है। देखो 4 पार्ट में, देखो ABCD है, AB जो है अंदर है, यहीं पे तो फील्ड रहेगी। और BC क्या है? फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी, बाहर तो है नहीं, जितना भी है ये अंदर फील्ड लाइंस ऐसे हैं। और DL ऊपर की तरफ रहेगा, डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? DL ये ले लो सेगमेंट, DL ऊपर की तरफ, जिधर उसमें ट्रेसिंग करेंगे, राइट एंटी क्लॉकवाइज ट्रेसिंग कर रहे हैं, तो DL और फील्ड इधर है, ये अंदर कोर के अंदर, या इधर रह सकती फील्ड। तो यहाँ पर DL एंड B, यहाँ पर 90 डिग्री रहेगा डॉट प्रोडक्ट, यहाँ भी 90 डिग्री रहेगा। आउटसाइड फील्ड नेग्लिजिबल है, तो बच्चा कौन सा पार्ट? AB में ही फील्ड विल बी सिग्निफिकेंट। तो 4 पार्ट में करके लिखते हैं। देखो दिस विल बी A to B, B डॉट DL, B to C, B डॉट DL, C to D, B डॉट DL। क्लोज लूप को हमने ब्रेक करके लिख दिया। D to A, वापस अपनी जगह आ गए, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज, कितना है? I इंटू N इंटू कैपिटल L। ठीक है, तो देखो ये यहाँ से याद है, देखो ये B डॉट DL, यहाँ पे देखो फर्स्ट AB, फील्ड भी इधर है, सॉरी, फील्ड आल्सो दिस साइड, DL आल्सो दिस साइड।
डीएल है कितना, ए बी की लेंथ कितनी, कैपिटल एन, दिस विल बी बी इंटू कैपिटल एन, इसको डायरेक्ट लिखना होगी, ठीक है। बी तो बाहर निकाल दिया हमने, और इंटीग्रेशन डीएल कितना है, डीएल इज द पार्ट ऑफ दैट ए बी की लेंथ हमने एल ली है एम्पीरियन लूप की, रिमेनिंग 3 विल बी 0। व्हाई दिस विल बी 0, बिकॉज एंगल 90 डिग्री आएगा इसका। व्हाई दिस विल बी 0, सी डी पॉइंट आउटसाइड है, देखो एंगल इसमें सी डी इज आउटसाइड, तो बी आउटसाइड इज नेग्लिजिबल, तो ये आउटसाइड है, तो इसलिए 0 है इसमें। यहाँ पे लिख दूं मैं आउटसाइड फॉर योर रेफरेंस, इसमें भी 90 डिग्री है, तो इसलिए ये भी 0 है। और यहाँ पे क्या है, म्यू नॉट आई, राइट साइड में n इंटू एल, एल विल ऑल्सो गेट कैंसल, बिकॉज ये तो हमने एम्पीरियन लूप इमेजनरी लिया हुआ है, उसकी लेंथ जो है इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस इनसाइड द फील्ड, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, जो भी लेंथ लेंगे उसकी दैट विल कम बोथ साइड। ऑलराइट, तो ये आपका हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, दैट्स व्हाट इज द required result, very important. This is the field inside the solenoid. Field inside the core of solenoid, the core of long solenoid. This derivation is frequently asked in your board examination. Can you see all derivation? तो इसमें 2 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, एक तो हमें करंट इनक्लोज निकालना आना चाहिए ठीक से ये वाला, और फिर एम्पियर लॉ लगाएंगे तो ब्रेक करके लिखना है। ओनली वन सेगमेंट ऑफ द एम्पीरियल लूप विल हैव द फील्ड, रिमेनिंग 3, ये वाले पे फील्ड, ये वाले पे डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है, ये वाले पे आउटसाइड आ रहा है इसलिए फील्ड नहीं है वहां पर, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की वजह से 0 है। ओनली जो इनसाइड जो लाइन बची that is remaining, and that's what is we need, field inside the core of the solenoid, that is mu naught ni। तो किस पर डिपेंड कर रही है इसमें, करंट मोर फील्ड, कैन यू सी, मोर करंट डबल कर दो, फील्ड डबल हो जाएगी, स्मॉल एन डबल कर दो, नॉट कैपिटल एन, कैपिटल एन पे डिपेंड, कैपिटल एन जो है डबल करने से लेंथ भी बढ़ सकती है, वी आर नॉट श्योर, है ना कि क्या है, कैसे चेंज कर रहे हैं हम, तो देयरफॉर n is capital N by L. If you change the number of turns keeping the length same, then n will be double. So we are more interested in small n. How does it change? If it is becoming double, the field will be double. And of course, core के अंदर air या vacuum है तो mu naught. Suppose you put it inside the core, you put it metal iron piece डाल दो अंदर insulated, तो medium will change. तो mu naught नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आयरन की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक कांस्टेंट विल चेंज, म्यू नॉट विल गेट चेंज, म्यू नॉट इज फॉर एयर और वैक्यूम, ठीक है। तो दिस डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Can you see whole derivation together? Look. So this now we will see some related points of this. Solenoid is also called inductor. Next chapter में हम इसका word देंगे inductor. When we use it in alternating current or changing current, then its name will be called inductor. अब जब हम उसको field produce कर रहे हैं तो solenoid बोल रहे हैं. Same helical coil will be called inductor when we use it in other purposes. So can you scroll a little bit up? This is done. Okay. Yes, sir. इसके ऊपर हमने इंट्रोडक्शन देखा था, इसका सोलिनॉइड क्या होता है, व्हाट इज सोलिनॉइड, दैट वी आर सीइंग. ओके, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग? No, sir.
एक मिनट, आई थिंक इट इज स्क्रीन इज फ्री नाउ। थोड़ा सा भी इसमें ओके नहीं, नो इट्स ओके, इट्स ओके। कैन यू सी? Yes, sir. ऑलराइट, देखो इसमें some more points we are going to see. Then Yes, Okay. sir. देखो इसमें और क्या पॉइंट सीख सकते हैं? एंड्स पर इफ यू सी द एंड्स, वहां पर फील्ड वीक हो जाती है, इट बिकम्स हाफ। दोनों एंड्स पर फील्ड विल बी हाफ। तो बिकॉज वन साइड कॉइल नहीं है, कॉइल इज कमिंग लाइक दिस, सोलेनॉइड इज लाइक दिस, तो फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, तो एंड्स पर दे बिकम वीक, तो हाफ हो जाती है। बिकॉज यू कैन से अदर पार्ट ऑफ द कॉइल, ऐसे समझ लो कॉइल को कट कर दिया, इधर का पार्ट निकाल दिया है ना, तो यहाँ पर हाफ हो जाती है फील्ड, बट एंड्स इट इज हाफ। इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, बस डेरिवेशन इज दिस मच ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन, एंड्स पर हाफ रहेगी फील्ड। ओके, सो वन मोर पॉइंट, सम मोर पॉइंट। देखो डायरेक्शन, देखो ये यहाँ पर देखो, हाउ टू गिव द डायरेक्शन, वही राइट हैंड रूल से। यहाँ से देखो आप, करंट अगर ऐसे आ रहा है सपोज, यहाँ पे देखो, कैन यू सी डॉट्स, और यहाँ पे क्रॉस, ये देखो यहाँ पे डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये शायद एनसीईआरटी बुक का। कैन यू सी डॉट्स? करंट ऐसे आके अंदर जा रहा है। तो वही राइट हैंड रूल, फिंगर्स इंडिकेट द करंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, थंब इंडिकेट द फील्ड। तो यहाँ से फील्ड लाइंस आएंगी ऐसे, एक साइड से इंटर होंगी, तो राइट हैंड रूल से हम पता कर सकते हैं। एंड ये देखो, अगर एक ग्राफ चाहिए हमें फील्ड कैसे चेंज होती है, एनसीईआरटी बुक में नहीं है, तो अंदर थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहेगी। देखो ऑलमोस्ट व्हेन वी रीच टू द एंड्स इट इज ड्रॉपिंग, हाफ हो रही, एंड इनसाइड ऑलमोस्ट अप टू द एंड, अप टू हियर इट इज यूनिफॉर्म। कितनी है? म्यू नॉट एन है, एंड एंड्स में ड्रॉप हो रही है, एंड देन फर्दर आउटसाइड इज इट इज डिक्रीजिंग slowly and becoming zero at infinity along the ends. ends ये कोर के अंदर है, और ये एंड पर है, और ये डिक्रीजिंग आउटसाइड। इट इज सोलेनॉइड इज नथिंग बट ए व्हाट इज कॉल्ड डायपोल। डायपोल में भी बाहर जो है 1/RQ होता है इलेक्ट्रिकल डायपोल में, आउटसाइड व्हेन वी कम आउट इट इज इनवर्स क्यूब, 1/RQ। So this is from other book, I am showing you the diagram. ठीक है, एडिशनल पॉइंट्स है, ये एनसीईआरटी बुक का है डायरेक्शन निकालने के लिए, है ना। तो सेम जो see it from front side, one side, see the direction of current, use the right hand rule, fingers along the circumference, thumb will indicate the field, direction of field inside the solenoid, simple logic। ठीक है, तो ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इसमें सोलेनॉइड का कोई काम नहीं है वैसे, डायरेक्ट दे हैव गिवन यू द फील्ड, only name is solenoid, field is given, you don't have to calculate even. Which formula? Go through the question and tell me which formula. F equals to BI. BILM, ILB, F is equal to ILB, sin theta, L length of the wire give दिया हुआ, L is given, मीटर में कन्वर्ट कर लो, A is given, सोलेनॉइड की फील्ड भी दे दी है, परपेंडिकुलर दिया, तो sin 90, फील्ड सोलेनॉइड किधर है, तो वायर ऐसे परपेंडिकुलर है, तो sin theta will be 1. What is the magnetic force on the wire? Simple question. Do complete it by putting the values and check the answer. SI unit में put करो and check the answer. Question number 6.
Now what about this? तो ये इसमें एक नया पॉइंट दिख रहा है हमें. What new point is there? See, 5 layers. Let's go through the question. Closely wound solenoid 80 centimeter long. Small L is 80 centimeter. 5 layers. मतलब 5 layers मतलब 5 wires are taken together and field will be एक सिंगल वायर के अंदर 5 कंडक्टर्स डाल दिए ना, केबल बना लिया. एक केबल से हमने लूप बनाया है, आई मीन सॉलिनॉइड बनाया. उस केबल के अंदर देयर आर 5 वायर्स रनिंग टुगेदर, तो 5 टाइम्स फील्ड हो जाएगी. दैट इज व्हाट इज द मीनिंग. जितनी लेयर्स है मल्टीप्लाई बाय दैट मेनी टाइम्स फील्ड विल बी देयर. 5 लेयर्स तो इनटू 5 हो जाएगा. ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ 400 टर्न्स ईच. टोटल टर्न्स है कि स्मॉल है? नहीं, क्या है? 400 इज व्हाट? कैपिटल एन. द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज इनसिग्निफिकेंट. डायमीटर क्यों चाहिए? आर तो आता ही नहीं उसमें, नॉट रिक्वायर्ड. इफ द करंट is 8 ampere, I is 8. Find out the magnetic field inside the solenoid. अच्छा, near ends भी है ना, near its ends, so half करना पड़ेगा. एक मिनट, इसका आंसर आएगा. Anyway, let us find out. पहले कोर का तो निकालो, उसको हाफ कर दो. म्यू नॉट एन है. Mu naught is 4 pi into 10 to the power minus 7 and will be capital N by L into I. Okay, N निकाल लो पहले. ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दो. N is capital N by L. Capital N is how much? 4. अच्छा, 5 भी करना पड़ेगा. देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है. 5 लेयर्स है. Here also 5 will come. कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ आंसर कितना आ रहा है. एन कैपिटल एन इज 400 डिवाइड बाई स्मॉल एल 0.8 सेंटीमीटर में दिया. करंट इज 8. तो देखो कितना आ रहा है. डू आई हैव द आंसर? लेट मी सी. इसमें दिया है कितना? नो, आई नॉट कैलकुलेटेड. चेक कर लेना कितना आ रहा है सिंप्लीफाई करके. ठीक है, ओके. So that will be the ends में पूछा है ना. Estimate the solenoid near its end. नहीं, near its center, sorry, not end. End कहाँ से पढ़ लिया मैंने? Center. बस यही है. Ends में हाफ करना पड़ता है if at all they ask you. Center में no, don't do it off. बस simplify कर लो इसको. ठीक है, यहाँ पे एक 0 बढ़ा लिया, ये कैंसिल हो जाएगा ना. 8 pi into 10 to the power something आ जाएगा. कितने जीरोस कम हो जाएंगे? 4 -3 नहीं, इसका भी. अच्छा, 80 भी था ना, उसको भी हमने 8 लिखा, तो ये 3 और -3 बचेगा ना, टेस्ला. और यहाँ भी 2 point something into 10 to the power minus 2 Tesla will come. So that you can do it. Check कर लेना इसका कितना आ रहा है ना. Complete कर लेना इसको. All right. What about this question? This is interesting question. इसमें भी 3 layers दिए. Field will be 3 times of mu naught Ni. So this you have to do it in any case. ये इसको complete करना है. इसमें क्या क्या दिया है? एक तो सोलेनॉइड दिया है. सोलेनॉइड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स रेडियस इज गिवन. रेडियस अगेन वी डोंट नीड इट. डोंट थिंक व्हाई दे आर गिविंग द रेडियस. यू फॉरगेट अबाउट द रेडियस. 3 लेयर्स 3 टाइम्स करना पड़ेगा. टोटल टर्न्स 300 एंड. अच्छा, 2 अनदर सिचुएशन है देयर. अंदर 2 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, ये वाली, कैन यू सी? एंड इट्स मास इज गिवन 2.5 ग्राम
lies inside the solenoid near its center, normal to the axis. Axis goes this side, perpendicular है ये angle. Sin theta will be 1 in this case. ठीक है? The wire is connected through the two leads parallel to the axis of solenoid. यहाँ से connected है, किसी बैटरी के साथ connected है. पैरेलल क्यों लिखा है बोलो? बिकॉज उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा. जो कनेक्टिंग वायर्स हैं दे आर नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी फोर्स, इसीलिए उन्होंने, क्योंकि करंट उसमें से ऐसे आएगा. सपोज ऐसे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी, या बाहर से लेके आए, बैटरी बाहर कनेक्ट की हुई है, तो ऐसे करंट है, इसमें नहीं लगेगा फोर्स. ओनली दिस 90 डिग्री पे इट विल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम फोर्स. इसलिए उन्होंने दिया है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड, connecting wire should not experience any force. ठीक है? To an external battery, बाहर लगी हुई है कहीं पर, ऐसा. ठीक है? और which supplies the current of 6 एम्पियर. इसके अंदर 6 एम्पियर है, ये अंदर छोटी सी वायर है, उसके अंदर 6 एम्पियर है. What value of current in the windings of solenoid? इसको windings बोलते हैं, ये जो टर्न्स हैं इनको वाइंडिंग्स बोला जाता है. ठीक है? कैन सपोर्ट द वेट ऑफ द वायर. ठीक है? इसमें कितना करंट भेजें? सपोज इसमें हम लोग आई करंट भेज रहे हैं, वही निकालना है. आई इन सोलेनोइड, आई इन सोलेनोइड निकालना है, सोलेनोइड के अंदर. ये दूसरा करंट कौन सा है? ये जो अंदर वायर रखी है उसमें करंट आ रहा है. नथिंग, इंसुलेटेड है वो, दे आर नॉट टचिंग ईच अदर. ठीक है? तो वो निकालना है. तो हाउ टू गेट इट? क्वेश्चन इज वेरी बिग बट सिंपल लॉजिक, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये. इसमें जब करंट जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, तो देयर विल बी BIL इन अपवर्ड which can balance the weight mg downward. That's all. mg will be BIL. ठीक है? B क्या लिखेंगे बोलो? mg of the weight, mg of the weight of the wire, small wire kept inside, will be balanced by Lorentz magnetic force. sin 90 हो जाएगा ये. तो B क्या लिखेंगे बोलो? I सोलेनोइड कर लो, इसको IS कर लो सोलेनोइड के अंदर. तो B लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड विच इज म्यू नॉट N into IS. IS is the solenoid current. इसके करंट को I ले लेंगे, तो बस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड पुट कर देंगे. वन थिंग, ओनली वन टर्म इज नोट, दैट इज IS, सोलेनोइड का करंट. क्लियर? कैन यू कंप्लीट दिस एंड सेंड इट टू मी? G की वैल्यू 9.8 लेना है. Everything I told you, only thing you should be able to put the things properly and solve it also. Solving की practice भी करना है. If you don't solve it, फिर calculations will be slowed down and mistakes will be there. Question number 26 है ये. This question is fit for JEE and NEET also. All right now. देखो ये बड़े बड़े सोलेनोइड ऐसे रहते हैं. देखो, you can you see this how big it is? यहाँ पे लोग खड़े हुए, देखो ये साइंटिस्ट आर स्टैंडिंग हियर. उनकी हाइट से तुम देख सकते हो हाउ बिग इट इज, मेनी मीटर्स इन डायमीटर. तो कहाँ का सोलेनोइड है ये देखो, which solenoid it is. Immense cylinder in this photograph is current carrying coil or solenoid that generates a uniform magnetic field in its interior as part of the experiment at CERN, that is European Organization for Nuclear Research. Experiment was carried out. 2 protons were accelerated to the very high energy and then collided, and then Higgs boson particle was discovered a few years back. And MRI machines also, they are using, उसमें बड़ा लॉन्ग सोलेनोइड नहीं है, दे आर जस्ट शॉर्ट सोलेनोइड. उसके लिए फील्ड का फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है.
and टोराइड क्या होता है फिर? टोराइड इज द सर्कुलर सोलेनोइड, सर्कुलर सोलेनोइड। ऐसे देखो, यू कैन सी नाउ, ये देखो, टोराइड इज द सर्कुलर सोलेनोइड to produce the local magnet, same as the solenoid. जो पर्पज उसका है to produce the magnetic field inside the TV and cyclotron, inside the computer also, box type जो कंप्यूटर थे, टीवी थे, है ना, उनके अंदर फील्ड, लोकल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे देखो करंट विल बी कमिंग फ्रॉम वन साइड, और ये वायर्स है ऐसे, इसके ऊपर सर्कुलर वाइंडिंग कर दी वायर्स, है ना। कैन यू सी बिगर डायग्राम? एक 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 ट्यूब ले ली, सर्कुलर ट्यूब, उसके ऊपर इंसुलेटेड वायरिंग ऐसे आके ऐसे, ठीक है। तो एंड इफ यू कट द क्रॉस सेक्शन ओपन ऑफ दिस टोरॉइड, इसको कट कर दो बीच से ऐसे, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन से, तो यहाँ से देखो करंट आएंगे, करंट बाहर आ रहा है, टर्न होके अंदर जाएगा ऐसा, कैन यू सी? डॉट से यहाँ पे क्रॉस है, सी बिगर वन। यहाँ से देखो, यहाँ तक है, ये कोर ऑफ द सोलेनोइड है, ये यहाँ पे डॉट्स है, ये क्रॉस है, करंट इज कमिंग एंड एंटरिंग लाइक दिस, ऐसे कमिंग आउट ऐसे, ठीक है। तो अंदर फील्ड निकालनी है हमें, यहाँ पर पॉइंट पॉइंट एस पर भी निकालनी है, एंड ये क्यू आउटसाइड है, यहाँ भी निकालनी है, और पॉइंट पी इनसाइड। देखो यहाँ पे 3 पॉइंट, कैन यू सी द डायग्राम? एस तो यहाँ पे रहेगा, देखो ये एस है, पी इज द गैप, जो उसमें गैप है सोलेनोइड के अंदर, एंड क्यू इज आउटसाइड। 3 places we have to find the field. Let's do it at least one place, बाकी कल करेंगे। Inside the, can we find out S? यहाँ पर जो S है पॉइंट, ये वाला, इसको एम्पियर लूप बना लेंगे ऐसे, उसमें से कितना करंट जाएगा बोलो? ओनली इनसाइड वाला करंट, ये करंट सब इंटर हो रहे हैं, बाहर के कोई यूज नहीं है, ये वाले लूप के अंदर का करंट चाहिए हमें, लूप के अंदर का करंट चाहिए। तो ये जितने भी दिख रहे हैं आपको क्रॉस, they are all carrying the current. So let's do it. Derivation. It is easier than previous one. तो टॉरॉइड समझ में आ गया? It is circular solenoid, same purpose as of the solenoid. ये इनफाइनाइट नहीं है, this is finite. ये इनफाइनाइट नहीं है ना। देखो यहाँ से डेरिवेशन देखेंगे हम, पॉइंट एस पर देखते पहले, बाकी कल डिस्कस करेंगे। देखो एस ले लिया, एम्पियर लूप बना लिया, एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है, और करंट ऐसे आ रहा है इसमें से। तो एम्पियर लूप के अंदर ओनली करंट अंदर जा रहे हैं, ठीक है। आई द करंट इन ईच टर्न, आर इज द मीन रेडियस। देखो R1 इज दिस इनसाइड रेडियस सोलेनोइड की, R2 इज आउटसाइड रेडियस। तो मीन रेडियस ले ली, R1 plus R2 by 2। If 2 radius are given, उसको ऐड करके हाफ कर दो। If only 1 radius is given, it means they are giving you the mean radius. So that you can read it and find out. Be the field inside the core, अंदर जो field है ऐसे, that is the field B. And in the turns per unit length, कितना होगा turns per unit length यहाँ पर? Total turns divide by circumference of the toroid. Total length उतनी होने वाली है ना, mean circumference 2 pi r. Now tell me how much will be the current enclosed. बस ये अगर तुमने सही कर दिया तो बाकी डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है। How much is the current enclosed by the ampere loop? ये वाला, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है एम्पियर लूप, एम्पीरियन लूप, करंट enclosed by एम्पीरियन लूप, by एम्पीरियन लूप। Quick answer.
देखो कितने लूप है, कितने करंट अंदर जा रहा है, आए फिर इससे आए, तो आए कितने कितने टर्न है अंदर, टोटल टर्न्स कितने, सारे टर्न्स तो एम्पियर लूप के अंदर ही है ना भाई, जितने भी टर्न्स हैं। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमने एम्पीरियल लूप बनाया, इसमें से करंट ऐसे आ रहा है, तो अंदर कितने करंट जा रहे हैं, मतलब लूप के अंदर कितने करंट्स हैं, जितने टर्न है, जितने टर्न्स है, एक एक ये टर्न दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ये एक दिख रहा है, ये, तो ये सारे टर्न्स तो लूप के अंदर आ गए कि नहीं, कोई बचा है, तो इट विल बी आई current in each turn into total turns. Okay, current in each turn. Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Okay, current in each turn into total number of turns. I enclosed is equal to I into capital N. That's all. Done. इतना ही समझना है बस, बाकी एम्पियर लॉ लगा दो और आई इसकी वैल्यू पुट कर दो, डेरिवेशन डन। इसके बाद एक ही लाइन देखो, ओके यहाँ पे देखो एम्पियर लॉ लगा रहे, बी डॉट डी एल, ये क्या हो जाएगा, बी इंटू डी एल म्यू नॉट आई इंटू एन, तो सर्कमफ्रेंस, डीएल इज द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, तो उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 पाई आर म्यू नॉट एन अपॉन 2 पाई आर into I, so that is nothing but mu naught Ni. Same. Can you see it? दिख रहा है? Yes, sir. Yes, एक sir. मिनट इसको मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं. This is creating problem. Now you can see it easily. तो ये हो गया डेरिवेशन, that's all. इसमें डेरिवेशन खत्म. स्मॉल एन क्या है, ऊपर लिखा था हमने, एन अपन, तो स्मॉल एन इज टोटल टर्न्स डिवाइड बाय टोटल लेंथ, दैट इज सर्कमफ्रेंस. दिस इज आल्सो सेम as that in the previous case. कुछ नया नहीं है इसमें. लॉन्ग सोलेनोइड का भी म्यू नॉट एन है, टोराइड का भी म्यू नॉट एन है, डिपेंडिंग ऑन एन एंड आई ओनली. और ये तो मैग्नेटिक कांस्टेंट आ गया. करंट मोर फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मोर फील्ड. Remaining points I will discuss tomorrow. How you can think how much field will be here, Q जो कि outside है, how much field will be inside the gap, empty space यहाँ पर. Think about that, both the fields in the empty space and outside. They are very easy points. You don't have to do much. But this was the main derivation. That is the main derivation. Either this or previous one. दोनों में से एक derivation frequently आता है. Both are almost similar. That's all from my side. If you want to ask anything, just ask.